अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अब्दुल रशीद क़ादरी डी9 न्यूज़ में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर। सिकंदराबाद के तिरमलगिरी के MCEME ऑडिटोरियम में टेक्निकल एंट्री स्कीम कॉन्वेंशन सेरेमनी मुनक़िद की गई। इस मौके पर आर्मी के आला ओहदेदार मौजूद थे। सारे आर्मी ऑफिसर के तैयार करदा बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को मीडिया के नज़र-ए-सानी किया गया। इसमें लैंड माइन डिटेक्शंस रोबोट, आर्मी ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग एंड फायरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट को भी दिखाया गया। आइए देखते हैं हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट मुख्तार अहमद की। And our own troops are vulnerable to enemy fire. And so to reduce these kind of casualties and injuries in the field, so we have developed this project which is real-time automated target tracking and firing system. So this project automatically detects the target, the predefined target, it automatically tracks it and we can fire it remotely. So now sir, we'd like to show you a small demonstration. While the targeting the two neighbor guys, there was a camera. So the camera has been moved upwards. Sir, when we come closer to the target, so it will automatically align itself. Sir, we are using this camera which will do a continuous surveillance in front of it at an angle of 120 degrees. Once the target comes in this range, try to get the target at the center of it and lock it. Then the green box will be shown on the still. If you want, we can do a remotely firing of the weapon. What is the range of this camera? पास ही नहीं हो रहा. The project we have developed is real-time automated target tracking and firing system. So this project is made with the help of 4 officers. We have procured a project from SGD, and in this, as I can show you, this is the model which we have procured from the SGD. Now it has a 70 kg of base. We have used 2 stepper motors for the pan and tail mechanism. There is a servo motor which is present here to give the trigger operation. There is a camera which is available. Now the use of this is, since we know we can't actually man every post 24/7, so this equipment can be placed at places where we cannot man the post, and this equipment can reduce the our own troops casualty. So I will show you a demonstration how this actually works. Kartik Tanwar will show the demonstration. What this project actually do is it basically tracks a human face whatsoever is it in front of it, and as soon as it detects, it start tracking it, and once the target is in the center, there is an indication in the laptop or the screen or the control room that it has been locked to it. Now after locking, we have now the control of firing it remotely from any place. So by this, the main advantage is that the casualty and the injuries from these kind of situations can be reduced. So that is the project, and this is how it is. Now I will show you the demonstration how it actually works. So this is the camera. When you come in front of the camera, as you can see, there is a green box which indicates that target is ready to lock and it is ready to fire. Now as you move left, it will move towards left. As you move towards right, it will move towards right, and this will follow wherever you go. And once the target is locked, the green box is there on the TV. Okay? Remotely a command can be given and you can fire remotely. So this is how it can be achieved. Thank you. Jai. My name is Lieutenant Mohit. I am from EME, and आज TS39 की 103rd कॉन्वोकेशन सेरेमनी हुई थी। तो उसमें ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है। ये हमारा प्रोजेक्ट जो है, ये एक आर्डिनो बेस्ड लैंडमाइन डिटेक्शन रोबोट है। इसमें हमने क्या किया है कि हमारे पास ऑलरेडी एक रोबोट था, बट वो मेटल का था और थोड़ा हैवी था, तो हमने उसको मॉडिफाई किया ताकि इसको हम थोड़ा लाइट बना सके, क्योंकि आपको पता होगा कि जो लैंडमाइन है वो 9 kg या उससे ज़्यादा वेट होता है, तो वो ट्रिगर हो जाती है और ब्लास्ट हो जाती है। तो इस पर हमने इसको मेटल की जगह वुडन उसमें वो मॉडिफाई किया है। तो हमारा जो रोबोट है, इसमें एक ये कॉइल है जो मेटल डिटेक्ट करती है, और इसमें हमने एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल डाला है जो हमारे कंट्रोल स्टेशन, जो कि एक लैपटॉप है, अलॉन्ग विद इसका जो वीडियो फुटेज है, वीडियो फुटेज आता है हमारे कंट्रोल स्टेशन में। और अगर कोई लैंडमाइन डिटेक्ट होती है, बेसिकली अभी हमने जितना किया है कि ये मेटल की माइन डिटेक्ट कर रहा है,
तो ये मेटल की जो भी चीज़ या माइन डिटेक्ट होती है तो हमारे कंट्रोल स्टेशन पे, जो कि इससे 200 से 300 मीटर दूर रहेगा, उस पर एक मैसेज आता है कि लैंडमाइन डिटेक्टेड, और उस जगह का कोऑर्डिनेट्स जो कि आप गूगल मैप्स भी डाल के चेक कर सकते हो कि यहाँ पे से कोऑर्डिनेट्स है। तो ये रोबोट बहुत यूज़फुल रहेगा इंडियन आर्मी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि लैंडमाइन से डे बाय डे कितने इंसिडेंट्स होते हैं, कितने लोगों की जान जाती है। तो अभी हमें लैंडमाइन क्लियर करने के लिए खुद नहीं जाना पड़ेगा, हम इस रोबोट को भेज सकते हैं। इसमें हमने ये कंट्रोलर यूज़ किया है। ये एक बेसिकली एक ड्रोन का कंट्रोलर है। इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है ताकि हम इससे एक रोबोट कार चला सकें। इसमें बेसिकली हमारा जो ये रोबोटिक आर्म है, इसे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, ताकि हम अपने एरिया को स्कैन कर सकें लैंडमाइन के लिए। तो ये इस प्रोजेक्ट का हमने पिछले साल स्टार्ट किया था। हमें जब इसका ऑब्जेक्टिव मिला था सितंबर 2022 में, फिर उसके बाद हमने इस पर रिसर्च स्टार्ट की, और इस पर काम जो है हमारा ऑन ग्राउंड हमने मार्च 2023 में शुरू किया था। एंड एवरी डे, मतलब डे बाय डे इस पर इम्प्रूवमेंट की गई है। तो लगभग आप ये मान लो कि इसमें 3 महीने का टाइम लगा है, और ये सक्सेसफुली बन के तैयार हो गया। और हमने इसे टेस्ट भी किया है। हमने ग्राउंड में मेटल ऑब्जेक्ट्स जो कि माइन जैसे प्रतीत करने के लिए हमने लगाए थे, ये उनको डिटेक्ट करता है, उनके कोऑर्डिनेट्स देता है। तो ये हमारा रोबोट, हम होप करते हैं इसको और मॉडिफाई करेंगे ताकि हम इसको आर्मी में कहीं ना कहीं यूज़ कर सकें। थैंक यू। इससे अपने को सारे जवान के लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि आपको पता है कि एक जब किसी की एक चोट भी लगती है तो पूरी फैमिली को कितना दिक्कत होती है। तो ये चीज़ अवॉइड हो जाए और किसी ह्यूमन लाइफ को कोई ख़तरा ना हो, इसीलिए ये रोबोट इज़ द नीड ऑफ़ द आवर, मतलब आज की एक ज़रूरत है ये रोबोट।